Jai Swaminarayan everyone. Good morning to you all. Today I am going to continue one topic and it is there in the second unit. It is principle of management. In that I am going to explain you today the thoughts of management. So some thoughts are the approaches, ideas, or you can say suggestions that are being given by some experts with regard to management. जो थॉट्स होते हैं उसे आप आइडिया, अप्रोच, सजेशंस कह सकते हो जो उनके माइंड में थे मैनेजमेंट से रिलेटेड. सो हियर two thoughts I am going to explain you today. The first one is thought of classical management. Yes, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड थॉट्स है उसमें से पहला जो थॉट है वो है थॉट्स ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट. तो ये जो थॉट है वो कब तक प्रिवेल हुआ या फिर कितने देर तक चला उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. It is presented till the end of 19th century. Okay, so it have been there, it have been existed till the end of 19th century. 19th century tak this the thought of classical management was there. Promoted, it have been promoted or some of the individual have contributed in the thought of classical management. तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्लासिकल मैनेजमेंट में या फिर थॉट ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट किया था या फिर उसे प्रमोट किया था? तो ये कुछ व्यक्तियों के नाम है जिनका इसके प्रमोशन में या फिर इसको बनाने में थोड़ा कंट्रीब्यूशन है. फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फेयोल, गिलब्रिट, मैक्स वेबर are some of the individual who have promoted the thought of classical management. Frederick Taylor contributed in this thought of classical management significantly by his scientific principle of management. The scientific principle of management exists in the thoughts of management. जो thoughts of management है उसमें आपको फेडरिक टेलर के कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे क्योंकि इन्होंने भी थॉट्स ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट में थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. So the scientific management refers to the scientific principle that is including the time and motion study. जो scientific management है वो scientific principle को consider करता है जो time और motion study को involve करते हैं. आपको ये फेडरिक टेलर के scientific principle के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि in the scientific principle of management, the scientific principles are being considered that are related to time and motion study. तो जो scientific management है वो scientific principles पे based है जो time और motion study को ज़्यादा consider करते हैं. So this individual is the one of the person who have contributed or who have given some ideas that is related to the thoughts of classical management, or his ideas or his thought that is related to scientific management can be found in the thoughts of classical management. जो फेडरिक टेलर के द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया गया था उससे जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो आपको थॉट्स ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट में भी देखने को मिलेगा. सो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फेडरिक टेलर. नेक्स्ट वन इज हेनरी फेयोल. Yes, Henry Fayol is also one of the individual who have contributed in the thoughts of classical management with his general principle. उन्होंने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के द्वारा इट थॉट्स ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट में अपना योगदान दिया था. इसमें उन्होंने
टास्क या एक्टिविटीज जो बिजनेस यूनिट में रहती है उसे प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और हर एक टास्क की लिमिट भी इसमें डिसाइड की गई है। तो जो प्रिंसिपल जो हेनरी फेयोल के द्वारा जनरल प्रिंसिपल जो दिए गए हैं वो भी आपको थॉट्स ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट में दिखाई देंगे, जो ये डिसाइड करता है कि बिजनेस यूनिट्स में कौन से टास्क रहेंगे और टास्क का लिमिट कितना होगा। It gives more important, this thought of classical management gives the more importance to financial motivation instead of human approach and industrial relation। ये जो थॉट ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल मोटिवेशन को या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को देता है, जबकि ये ह्यूमन अप्रोच और इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो दिस आर द पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू द थॉट्स ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट। ये थॉट जो है it is being presented till the end, means it was there till the end of 19th century। 19वीं सदी तक ये थॉट जो है वो था। उसके बाद इसके प्रमोशन में कौन से व्यक्ति थे जिसने इस थॉट ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट को प्रमोट किया या फिर इसको इन्फ्लुएंस किया? तो फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फेयोल, गिलब्रेट, Max Weber are the individual who have promoted the thought of classical management. Third thing, Frederick Taylor have contributed in this significantly in this thought of classical management with his scientific principle of management। जो फेडरिक टेलर के द्वारा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया गया था उसको आप क्लासिकल मैनेजमेंट, थॉट ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट में फाइंड कर सकते हो। इट कैन बी फाउंड इन द थॉट ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट। एंड हेनरी फेयोल हैव आल्सो बीन कंट्रीब्यूटेड इन द थॉट ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट विथ हिज जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल्स के द्वारा हेनरी फेयोल ने भी थॉट्स ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट में अपना योगदान दिया है, जिसमें जनरल प्रिंसिपल में कौन से टास्क या कौन सी एक्टिविटीज बिजनेस यूनिट्स में आती है और उन टास्क का लिमिट कितना होता है वो डिसाइड होता है। इट गिव्स दिस थॉट ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस टू द फाइनेंशियल मोटिवेशन। जो थॉट ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट है वो एक ऐसा थॉट है जो फाइनेंशियल मोटिवेशन या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। किस चीज की तुलना में? ह्यूमन अप्रोच और इंडस्ट्रियल रिलेशन की तुलना में। सो लेस इंपॉर्टेंस इज बीइंग गिवन टू ह्यूमन अप्रोच और ह्यूमन सजेशन और थॉट्स, एंड मोर इंपॉर्टेंस इज बीइंग गिवन टू फाइनेंशियल कंसिडरेशन। यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को ये थॉट्स ज्यादा कंसिडर करता है, जो इसका एक लिमिटेशन भी है। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन टॉपिक व्हिच इज देयर इन द सेकंड यूनिट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंड इट इज अबाउट थॉट ऑफ नियोक्लासिकल थियरी। सो in the thought of management or thoughts of management, the second point is thought of neoclassical theory. This theory was being introduced or was being presented in order to overcome the limitation of this thought of classical management. तो ये जो थियरी, जो नियोक्लासिकल थियरी है, वो इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि जो थॉट ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट है उसके लिमिटेशंस को आप कुछ हद तक अवॉइड कर सके या फिर उसे ओवरकम कर सके। सो who was the individual or person that have introduced this theory? Alton Mayo, an Australian industrialist, was the individual who have promoted this principle or this theory, that is neoclassical theory of management.
तो एल्टन मायो वो व्यक्ति था जिसने इस नियो क्लासिकल थियरी को प्रमोट किया था। नेक्स्ट थिंग इज दिस थियरी गिव्स इंपॉर्टेंस टू समथिंग, इट एम्फसाइज ऑन बिहेवियर अप्रोच एंड ग्रुप बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट। तो जनरली ये एक बिहेवियर ओरिएंटेड थियरी है जो ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन अप्रोच को कंसिडर करता है। इट ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द ग्रुप बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो ह्यूमन बिहेवियर को दिया जाता है, ऑन नॉट लाइक द थियरी ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स द थॉट ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट की कंपैरिजन में यहाँ पे बिहेवियर अप्रोच और ग्रुप बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। Elton Mayo, Hesburgh, Francis Likard, Chris Agiris are the contributors in this। तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इस थियरी को प्रमोट किया था। Including Elton Mayo, the other individual who have contributed in this theory are Hesburgh, Francis Likard, Chris Agiris are the person who have promoted this theory or contributed in this theory। तो इन लोगों ने अपना योगदान दिया है, अपने थोड़े आइडियाज दिए हैं इस नियो क्लासिकल थियरी में। ये थियरी में ज़्यादातर जो ह्यूमन रिलेशंस है या ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच है या ह्यूमन बिहेवियर थॉट दैट आर बीइंग कंसिडर्ड इन दिस नियो क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा जो सोशल मैकेनिज्म या सोशल अरेंजमेंट्स है उनको भी मेनली कंसिडर किया गया है। सो ह्यूमन रिलेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर थॉट आर बीइंग कंसिडर्ड इन दिस नियो क्लासिकल थियरी, एज वेल एज द सोशल मैकेनिज्म एंड सोशल अरेंजमेंट आर ऑल्सो बीइंग गिवन द प्रायोरिटी और दे आर ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड एज मेन। सो वंस अगेन आई एम गोइंग थ्रू द पॉइंट। The theory was, this neoclassical theory was presented in order to overcome the limitation of classical or this classical management, the thought of classical management। तो ये थियरी को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि जो थॉट ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट में जो लिमिटेशंस है, जो फाइनेंशियल मोटिवेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, उसको अवॉइड किया जा सके। Second thing, Elton Mayo was the person who have promoted this neoclassical theory, or he is being called the one who have promoted the neoclassical theory of management. Next thing is, it emphasizes or it gives importance to the human behavior or human approach and the group behavior of management। यहाँ पे ये जो neoclassical theory है उसमें आपको ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच और ग्रुप बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। एंड द अदर इंडिविजुअल हु हैव promoted this theory or who have given their contribution in this theory are Hesburgh, Chris Agiris and this Francis Likard are the individuals who have contributed in this theory। इस थियरी में कंट्रीब्यूट करने वाले दूसरे इंडिविजुअल्स हैं Hesburgh, Francis Likard और Chris Agiris, जिन्होंने अपने आइडियाज और सजेशन इस नियो क्लासिकल थियरी में दिए हैं। और ये थियरी जो है वो ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा कंसिडर करती है। इसके अलावा ये सोशल अरेंजमेंट और सोशल मैकेनिज्म को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। थैंक यू।